हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सम्स, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज सम्स। आज हम लोग फिर से उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स ऑफ दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन विद द 2 सम्स। जो हम लोग आज का हमारा जो रिएक्शन होगा थोड़ा वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मतलब फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द सम्स नंबर 40 एंड 41। बोथ आर द सिमिलर सम्स, मोस्टली सिमिलर सम्स इन बोथ सम्स। same formula is used, so we select these 2 sums to calculate first. So let us start our today's session with sum number 40. May you have a textbook and bring with it, or you have not, then you bring your textbook. Chalo, let us start. What is the question? The question is determine the amount. Here they gave us the calculation of amount of CaCl2 and quantum factor is given, that is 2.47 dissolved in a 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 degrees Celsius. So you think just ki what we have to calculate, that is mass amount, and the osmotic pressure is given. Then you think what is the formula of osmotic pressure? What is formula of osmotic pressure? It is pi is equal to mRT and into want of factor, that you all know, you know already. Now what we have to find? Number of moles, where it comes in molarity. चल तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाई इज गिवन, देयरफॉर इट इज 75। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर। आई राइट डायरेक्टली हियर मोल्स पर लीटर and R into T and into I. Therefore 0.75 moles we have to calculate, therefore I write it symbolically NB. Liter is given, that is 2.5. R is always constant, that is 0.082, and temperature is given 27 degrees Celsius. So we convert it into Kelvin, therefore it is 300 Kelvin and multiplied by 2.47, that is want of factor. Very easy question, very silly question, and it is asked in 1 or 2 marks maybe. Therefore now you calculate for NB from this expanding or calculating the equations and the calculations. You get NB is equal to 0.03 moles. Very easy question. So we consider initially that question, okay, then it is very easy to you. Chal, next we move on to second question of today's session, that is question number 41. Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving a 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius. And most important thing is assuming that it is a completely dissociated, मतलब K2SO4 जो है वो completely dissociation, मतलब 100% dissociation के अंदर जा रहा है। इससे टोटली ऑपोजिट सम है। यहाँ पे आप लोगों को दिया पाई दिया गया था और वहाँ पे पाई फाइंड करना है, और कुछ नई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देयरफॉर पाई इज इक्वल टू mRT इंटू आई। तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई को अगर हम लोग फाइंड करें तो ऐसे भी आप लोग एक स्टेप ज़्यादा कर सकते हो, अगर डायरेक्टली आता हो तो भी आप लोग लिख सकते हो। देयरफॉर अब यहाँ से K2SO4 जो है वो डिसोसिएट करता है 100%, 2K प्लस SO4
2 माइनस तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो गया। फर्स्ट मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, बस अभी क्या है वैल्यू पुट करो। देयरफॉर पाई इज इक्वल टू मोल पर लीटर। अब मोल यहाँ पे नहीं दिया गया, मास दिया गया है 25 मिलीग्राम। मिलीग्राम को भी क्या करना पड़ेगा ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज़ 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब K2SO4 तो उसका मॉलिक्यूलर मास आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आएगा आंसर 174 जितना। और लीटर कितने दिए हैं हमारे पास, तो 2 लीटर है। अब 2 लीटर है तो फिर आएगा यहाँ पे क्या, तो R तो 0.082। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब हो जाएगा 298 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। चल तो इसको आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को पाई इज इक्वल टू आंसर जो है वो मिल जाएगा 5.27 इंटू 10⁻³ एटमोसफियर। बोथ आर वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन कैलकुलेट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। डन। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम के ऊपर जाते हैं। ओके तो let us start our new true sums. First question number is 39. Let us check what we have to calculate. The air is the mixture of a number of gases. We know the major components are oxygen and nitrogen gas. Approximate proportion is given, that is 20% is to 79% by the volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air of a pressure of a 10 atmosphere. मतलब यहाँ पे सपोज करना है कि टोटल प्रेशर इज 100। हाँ तो ही हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे O2 और N2 का प्रेशर कितना है, वो पहले वो कैलकुलेट करेंगे। एंड फिर हम लोगों को वैल्यू दी गई है KH ऑफ O2 एंड KH ऑफ N2। देन कैलकुलेट द कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपोजिशन, and that is a mole fraction we have to calculate on the basis of a Henry's law. So chalo we can calculate first P of O2. P of O2 is pressure of N2. P of O2 is sorry, it is given 20. Therefore 20 into 10 and total pressure is 100. Therefore तो कितना आ जाएगा आप लोगों को वैल्यू जो मिलेगी, दैट इज 2 मिलेगा यहाँ से 2 एटमोसफियर। अब ये 2 एटमोसफियर है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा mm में कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयरफॉर इट इज़ 760 into 2 तो 1520 mm ऑफ Hg। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे mm में दिया हुआ है इसलिए। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द P ऑफ N2। देयरफॉर 79 into 10 divided by 100, so it is the answer will be 7.9 एटमोसफियर। और इसको 7.9 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 760 से तो आंसर विल बी 6004 mm ऑफ Hg। ये आंसर आप लोगों को मिलेगा। नाउ वी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। हमें क्या करना है, तो P ऑफ, चलो यहाँ से पहले ले लें P ऑफ O2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X ऑफ O2। देयरफॉर तो X ऑफ O2 P ऑफ O2 डिवाइडेड बाय KH। P ऑफ O2 इज 1520 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा KH की वैल्यू, P ऑफ O2 इज गिवन 3.3 इंटू 10⁻7, then you will get final answer is 4.6 into 10⁻5. Similarly, if you calculate the X of N2, therefore P of N2 divided by KH, therefore P of N2 is 6004 divided by KH is given 6.5 into 10⁻7, then you will get final answer is 9.2 into 10⁻5. This will be the answer. Very simple question. This will be may ask in a 2 marks, not more
3 मार्क्स में कभी ये पूछा नहीं गया, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंटली सम्स के का कैलकुलेट करते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़े, अब उस सम के ऊपर आते हैं। ये तो सम भाई उसके साथ भी बहुत ही ईजी है, उसी के जैसा ये थोड़ा बहुत। चलो तो 100 ग्राम हमें क्या दिया हुआ है, लिक्विड ए, मॉलिक्यूलर मास इज 140 ग्राम, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ बी। दोनों लिक्विड है, मतलब आप लोगों को दिमाग के अंदर स्ट्राइक होना चाहिए। इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। P0B दिया हुआ है 500 और कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए, दैट इज P0 है, हमें कैलकुलेट करना है। इट्स वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन जो दिया हुआ है वो 475 टॉर दिया है। तो सभी यूनिट्स टॉर में, तो कोई भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को पहली बात ये पता चलनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेशर टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, PA प्लस PB, वेर PA इज इक्वल टू वॉट, तो P0A इंटू ज़ाई ए, P0B इंटू ज़ाई बी। चलो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ज़ाई ए क्या होता है, तो NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB एंड ज़ाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ाई ए कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज़ाई बी मिल जाएगा। चलो व्हाट इज़ NA क्या होगा, तो ये भी फाइंड करना पड़ेगा। NA इज इक्वल टू WA डिवाइडेड बाय MA। WA क्या है, तो मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 140 ग्राम। देयरफॉर आंसर आप लोगों को कितना मिलना चाहिए, यहाँ से 0.88 मिलेगा, 0.88। देयरफॉर ज़ाई बी तो 1 माइनस ज़ाई ए, क्योंकि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1। देयरफॉर 1 माइनस 0.88 इज इक्वल टू 0.12। देन ज़ाई बी मिल गया, आप वैल्यू पुट करो। देयरफॉर पी टोटल इज इक्वल टू P0A, अच्छा पी टोटल की भी वैल्यू हमारे पास है तो 475, P0A एज इट इज़। फिर ज़ाई ए हमें कितना मिला, तो 0.88 प्लस क्या करना है हमें, तो P0B कितना दिया हुआ है 500 टॉर इनटू क्या करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज़ 0.12। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को मिलेगा P0A की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 280.7 टॉर। अब इन सॉल्यूशन का है तो क्या करोगे, P0A इज इक्वल टू 280.7 और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या इसको मल्टीप्लाई करो 0.12 से, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा 0.12, मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी से, तो आप लोगों को जो होगा वो फाइनल मिल जाएगा 32 टॉर। इन सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप लोग लिख दो इन सॉल्यूशन, और ये जो है वो प्योर लिक्विड ए का, बहुत ही इजी सम। डन, तो एक हम लोग लास्ट सम करेंगे अब। हेलो फ्रेंड्स, तो आज लास्ट सम स्टार्ट करते हैं हम लोग, सम नंबर 33 एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम आस्क्ड इन 3 मार्क्स, that is most important sum. Let us check what will be the calculation. 19.5 gram of CH2FCOOH fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram of water. The depression in a freezing point is 1 degree Celsius. Calculate want of factor and dissociation constant find करने को बोला गया, that is Ka, dissociation constant, not degree of dissociation. So that's why this question is very important. Okay, we have formula delta Tf is equal to Kf into m into I. Second thing I want to tell you that in this question Kf is not given. Kf is not given, then what we do? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है Kf, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वाटर का Kf क्या होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो आप लोगों को याद होना चाहिए।
मोलालिटी भी नहीं है और वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, तो फर्स्ट वी फाइंड मोलालिटी। चलो मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, दैट्स वाई। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हमें दिया हुआ है मास, देयरफॉर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ solvent in kilogram, therefore mass given is 500 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को नियरली मिलेगा 78 जितना मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। और फिर मास ऑफ ए सॉल्वेंट सॉरी यहाँ पे आएगा 19.5 और यहाँ पे है किलोग्राम में, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.5, देयरफॉर द मोलालिटी विल बी इक्वल टू 0.5 मोलल। ये आप लोगों का आंसर आएगा मोलालिटी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर। चलो डेल्टा टी एफ जो है वो हमें दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 1, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू के एफ इज़ 1.86, मोलालिटी इज 0.5 and want of factor is I, therefore I is equal to 1 divided by 1.86 into 0.5, then you get the answer 1.07, नियरली अप्रॉक्सीमेट 1.07। इतना कैलकुलेट करो, फिर हम लोग मेन जो पार्ट है इस सम का उसके ऊपर जाते हैं हम लोग। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई के ए मतलब क्या हुआ कि डिसोसिएशन कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई CH2FCOOH नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, देयरफॉर CH2FCOO माइनस एंड H प्लस बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। अब सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1 मोलल, देन इट विल 0। अब यहाँ से 1 मोलल में से क्या होगा, तो m इंटू 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा m अल्फ़ा एंड m अल्फ़ा। तो यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला याद करो आप लोग कि भाई नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो m अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा कितना बच गया, तो m इंटू 1 माइनस अल्फ़ा जितना बचा, और टोटल अभी 1 नहीं है, देखो m है तो m लिखना पड़ेगा। चलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो m अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा प्लस m माइनस m अल्फ़ा, इसको एक्सपांड करेंगे तो m अल्फ़ा कट और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय m, देयरफॉर m अल्फ़ा प्लस m डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे ऊपर में से क्या करो, m को कॉमन निकालो, देयरफॉर m इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय m, m हो जाएगा कैंसिल, देयरफॉर 1 प्लस अल्फ़ा मिली वैल्यू। I इज इक्वल टू, अब I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, I हमें क्या मिला था, तो 1.07 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.07 माइनस 1, देयरफॉर अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगी 0.07, 0.073 या 75 जितना मिल रहा है, आंसर 75 मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा 75। अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिली 0.075, इतना लिख लो पहले। फिर हम लोग नेक्स्ट, अभी इजी हो गया, अभी ये समझ में आ गया, मतलब सब कुछ कंप्लीट है। चलो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिली 0.075, आई मिला था हमें 1.07। अब हमें क्या फाइंड करना है, के ए फाइंड करना है। तो पहले के ए का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो पहले हम लोगों को इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए CH2F
COO माइनस M अल्फ़ा, तो M क्या है, मोलालिटी, मोलालिटी की वैल्यू क्या मिली हमें 0.5, 0.5 इंटू अल्फ़ा कितना मिला, तो 0.075। तो इसका आंसर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट जो मिलेगा वो मिलेगा 0.037, और यही वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगी, H प्लस के लिए भी मिलेगी। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दे रहा हूँ H प्लस, और आप लोगों को CH2F COOH, तो वो क्या है, तो M इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, तो M 0.5, 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू होगी 0.075। तो ये जो आंसर होगा वो नियरली आप लोग को मिलेगा 0.452 जितना मिलेगा। अब फाइंड करो Ka, तो Ka इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, तो CH2F COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, CH2F COOH। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, 0.037 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.452, इसका कैलकुलेशन करोगे तो नियरली आप लोगों को मिलेगा आंसर 5.07 इंटू 10⁻⁻3। वेरी इजी क्वेश्चन, 3 मार्क्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोगों का आज ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को जो कुछ भी डाउट है वो पूछते रहना, स्कूल कब चालू हो हमें कुछ नहीं पता है, आप लोगों को प्रिपेयर करना है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी वेल, टू स्टडी थरोली, टू स्टडी कंसेप्चुअली, तो ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।